Hello students, myself Professor Priyanka Laute, Viva Diploma College of Engineering and Technology from Civil Department. In part 1 lecture, we have done the examination scheme for advanced survey subject and also the overall syllabus of advanced survey subject. Also see the introduction of our first chapter, that is plane table survey and principle of plane table survey. This is our lecture 2, and in this lecture we will try to cover the brief explanation of equipment and accessories required for plane table survey and also see the advantages and disadvantages of plane table survey. Now let us start with the equipment and the accessories required for plane table survey. The very first equipment required for plane table survey is plane table itself. In this image you can see this is our plane table which we used in our practical. Second one is the alidade. We have two types of alidade. One is a simple alidade and second one is a telescopic alidade. You can see in this image this is a simple alidade. Third one is a spirit level. This is a spirit level. Fourth one is a trough compass. Here is a trough compass. Trough compass is used for marking the north direction on the drawing sheet. Next instrument is U-fork or the plumb beam with plumb bob. This is U-fork with plumb bob. All of you use this plumb bob for the centering purpose. Here the difference is that this plumb bob is attached with this U-shaped metal strip. Then the next one is the accessories. Accessories used for plane table is drawing sheet. Drawing sheet is used for plotting the maps. Next one is the pin. Pin is used for fixing the drawing sheet. Then measuring tape. Measuring tape is used for measuring the distance from station to object. And last one is the ranging rod. Ranging rod is used to fix up the station point or the object point. Now we will see the brief explanation of equipment of plane table survey. The very first equipment used in plane table survey is plane table itself. The plane table comes with its stand or the tripod. Now let us look at a plane table. As you can see in this image, this plane table is made up of teak wood or the pine wood with its upper surface exactly plane, and it is rectangular in shape with size is 750 by 600 mm. Here you can see this in this image, this tripod stand used for fix up the plane table for plotting the map. Okay, so wherever we want to work in the field, we can carry this plane table and the tripod with us. On the field, we first fix up this tripod and we label the tripod height as per our convenience, and then on the top of this tripod the plane table is fixed. Suppose the plane table cannot be level, then we can adjust this height as per our convenience, or it can be say that the one leg of this tripod we can move radially or circumferentially for the leveling purpose. Another method is that we can use the spirit level. We put the spirit level like this also or like this also. So we can level the plane table with the help of spirit level. Then in addition to this plane table can be rotated or as well as it can be clamped.
अभी सपोज यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिया है फॉर फिक्सिंग द प्लेन टेबल ऑन द ट्राइपॉड। अगर हम लोग ने ये प्लेन टेबल फिक्स्ड किया मीन्स क्लैम्प किया तो ये क्या होगा, रोटेट नहीं होगा। ओके, अगर इसको लूज किया तो ये रोटेट हो सकता है। तो रोटेट किसके लिए ज़रूरी है, बिकॉज जैसे कहाँ पे भी ऑब्जेक्ट रखा है, ओके, तो वो ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करने के लिए हम लोग को प्लेन टेबल घुमाना पड़ता है, बिकॉज हम लोग क्या करें वहाँ पे ही मैपिंग करें। तो इसके लिए ये अरेंजमेंट दिया है फॉर प्लेन टेबल सर्वे। तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्लेन टेबल इज ट्राइपॉड। अभी ट्राइपॉड का यूज़ हमने पहले भी किया है। ये जो आप सेकेंड इमेज में देख रहे हो ट्राइपॉड, ये ट्राइपॉड हम लोग ने यूजुअली ऑटो लेवल और डंपी लेवल फिक्स करने के लिए किया है। प्लेन टेबल सर्वे के लिए ऐसे वुडन टाइप के ट्राइपॉड आते हैं। तो जो प्लेन टेबल है नॉर्मली एक कंबाइंड रिजिड फ्रेम है जो 1 फोल्ड और 2 फोल्ड में आता है। 2 फोल्ड किसके लिए आता है कि हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी हो, इसके लिए ये 2 फोल्ड में आता है। प्लेन टेबल का नॉर्मली सिंगल फोल्ड में आता है। और ऑल ऑफ यू नो कि हम लोग ट्राइपॉड किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लेन टेबल में प्लेन टेबल फिक्स करने के लिए। तो ये ऐसे वाले ये जो येलो टाइप का ट्राइपॉड है, या हम लोग आप लोग ने जो सर्वे लैब में देखा है ऑरेंज कलर के भी है, ग्रीन कलर के भी है, तो वो हम लोग डंपी लेवल या ऑटो लेवल फिक्सअप करने के लिए यूज़ करते हैं। The next instrument is ELIDAD. Here we have 2 types of ELIDAD. One is a simple ELIDAD and another one is a telescopic ELIDAD. हम लोग अपने प्रैक्टिकल में सिंपल ELIDAD ही यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज हम लोग जो ग्राउंड पे सर्वे करते हैं, मतलब जो करने वाले हैं, अगर प्रैक्टिकल्स में जो स्टूडेंट्स करते हैं तो नॉर्मली वो सरफेस प्लेन होता है। टेलीस्कोपिक ELIDAD हिली एरियाज़ में नॉर्मली यूज़ करते हैं। So let us see the first type, that is simple ELIDAD. You can see in this image, this is our simple ELIDAD. The simple ELIDAD carries the 2 vane. The one is the object vane and another one is a side vane. The object vane carries a thin wire and the side vane contain a slit. This slit is used for bisect the object from this wire. Okay, and this ये जो स्केल है, ये स्केल 50 सेंटीमीटर का स्केल होता है नॉर्मली। और जो एक ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक स्केल का जो एज है वो चैम्फर किया होता है और वहाँ पे स्केल दिया होता है, तो उसे बिवेल्ड एज बोलते हैं और फिड्यूशियल एज भी बोलते हैं। अभी यहाँ पे अगर एग्जांपल देना हो कि ये कैसे बाइसेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट यहाँ पे सपोज ऑब्जर्वर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करना है। तो ये क्या करेगा, जो साइड वेन है वो अपनी तरफ रखेगा और यहाँ से सीधा ये ऑब्जेक्ट को बाइसेक्ट करेगा। तो ये लाइन वो यहाँ से लेके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, मीन्स पैरेलल टू दिस ग्राउंड। ओके, और अनदर है, सपोज यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ओके, और ये बिल्डिंग के कॉर्नर को बाइसेक्ट करना है से। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक यहाँ पे हम लोग का सेंटर पॉइंट होगा। तो ये जो सिंपल ELIDAD है वो ऐसे हम लोग को क्या करना है, अराउंड दिस सेंटर हम लोग को मूव करना है। सपोज यहाँ पे अभी ऐसे ये मूव किया है, ऐसे इमेजिन करो आप लोग, और यहाँ पे बिल्डिंग को बाइसेक्ट किया है। तो ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी, ऐसे लाइन होगी, और यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जर्वर होगा। मीन्स यहाँ का एक पॉइंट और यहाँ का एक पॉइंट, ऐसे दोनों एक पॉइंट पे मिलेगा और हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल हम लोग को मिलेगा। तो यही ELIDAD का यूज़ है। द नेक्स्ट ELIDAD इज अ टेलीस्कोपिक ELIDAD।
टेलीस्कोपिक एलिडेड हम लोग कभी यूज़ करते हैं नॉर्मली इन हिली एरिया, जब भी सम ऑब्जेक्ट हायर लेवल पे है और सम ऑब्जेक्ट लोअर लेवल पे है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग को क्या करना है, बाइसेक्ट करना होता है, तभी हम लोग टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। टेलीस्कोप नॉर्मली सभी लोग ने यूज़ किया होगा, बट हियर एक आइडिया क्या किया है, जैसे ही सिंपल एलईडी में जो स्केल था उसमें ही ये असेंबली अटैच किया है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी मार्किंग है स्केल का, तो हम लोग यहाँ से हम लोग ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो टेलीस्कोप आप लोग देख रहे हो, ये टेलीस्कोप से क्या होता है, हम लोग बाइसेक्ट करते हैं। और यहाँ पे देखो स्पिरिट लेवल दिया है, जो स्पिरिट लेवल किसके लिए यूज़ करते हैं, मतलब लेवलिंग पर्पस के लिए, कि हम लोग ने अगर ये प्लेन टेबल पे रखा है तो बराबर से लेवल में रखा है कि नहीं, तो ये कैसे पता चलता है कि यहाँ पे एक बबल ट्यूब है, अगर वो सेंटर में आया तो पता चलेगा कि हम लोग ने ये टेलीस्कोप बराबर लेवल में रखा है कि नहीं। और एक एडवांटेज है कि हम लोग यहाँ से वर्टिकल एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल एलईडी में हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड आउट करते हैं, बट यहाँ पे टेलीस्कोपिक एलईडी में एडवांटेज है कि हम लोग को वर्टिकल एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे और एक पर्पस है कि हम लोग जब भी सपोज कि ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है और हम लोग वो नेकेड आई से देख नहीं पाते, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग टेलीस्कोपिक एलईडी का यूज़ करते हैं। एंड दिस एलईडी गिव्स अ हायर एक्यूरेसी एंड मोर रेंज ऑफ साइट कंपेयर टू सिंपल एलईडी। ओके, दिस इज overall advantages of telescopic LED. The next category of instrument is spirit level. The spirit level is used for the proper leveling of the plane table. As you can see in this image, this spirit level contain a big circular tube, and this tube is filled with the less viscosity fluid, and this liquid is a mixture of ether and alcohol. When this bubble comes in the center, it means our plane table is perfectly level. Okay, this is the use of spirit level. The next category of instrument is trough compass. The trough compass is carry the pivoted magnetic needle at the center. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक पाइवोटेड पॉइंट है, और ये क्या होता है, फ्री टू सस्पेंडेड, मीन्स ये मैग्नेटिक होने के कारण वो फ्री टू सस्पेंडेड है। अभी ये इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, नॉर्मली नॉर्थ लाइन मार्किंग के लिए करते हैं। अभी वो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे एक 0 है डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री, और यहाँ पे है 0, तो ये जब भी 0 0 ऐसे कोइंसाइड हो गए, मीन्स दिस नीडल कम्स हियर एंड दिस नीडल कम्स हियर, इट मीन्स दिस शोज अ परफेक्टली नॉर्थ लाइन। अभी ये सपोज ये ड्राइंग शीट है, तो एक बार ये रखना कैसे है, अलग अलग पोजीशन में, एक बार यहाँ पे रखना है, एक बार यहाँ पे रखना है, और देखना है कहाँ पे एग्जैक्टली वो कोइंसाइड हो रहा है। देखो थर्ड पॉइंट में लिखा है, व्हेन द फ्रीली सस्पेंडेड नीडल शोज 0 डिग्री एट द एंड, द लाइन ड्रॉन ऑन द पेपर विच रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक नॉर्थ। जब भी 0 0 आएगा कहाँ पे भी, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ हम लोग ऐसे इंडिकेट कर देंगे ड्रॉइंग शीट में। द नेक्स्ट कैटेगरी है यू फॉर्क विद द प्लम बॉब। द यू फॉर्क इज अ metal strip bent in a shape of U hairpin. You can see in this image also like a U shape, having equal arm length, and the top arm is pointed. This top arm is pointed, and the bottom arm carries a hook for, this is hook, and for suspending a plumb bob. Okay. The next one, the U fork with the plumb bob is used for centering the plane table over the point or the station occupied by the plane table.
when the plotted position of that point is already on the sheet. And also in the beginning of the work it is used for transferring the ground point on the sheet. Means suppose यहाँ पे प्लेन टेबल है और यहाँ पे हम लोग का ग्राउंड पे एक पॉइंट है। देखो यहाँ पे हम लोग का क्या रहेगा, ग्राउंड पे एक पॉइंट है और यहाँ पे हम लोग का ये पॉइंटेड एंड है। तो हम लोग को ये पॉइंट शीट पे मार्क करना है। तो क्या करेंगे, हम लोग बराबर प्लम बॉक्स यहाँ पे ये पॉइंट पे लाएंगे और यहाँ से सीधा ऐसे हम सेंटर मार्क करेंगे। कहाँ पे, ऑन द ड्राइंग शीट। मीन्स इन द बिगिनिंग हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लेन टेबल सेटअप किया, जैसे यू फॉर लगाया और सस्पेंडेड प्लम बॉब किया, तो जो भी पॉइंट आएगा वो हम लोग का स्टेशन पॉइंट। इट मीन्स क्या होगा, वो ट्रांसफरिंग द पॉइंट फ्रॉम ग्राउंड टू शीट और शीट टू ग्राउंड। ओके, ये इन शॉर्ट प्लम बॉब का यूज है। नेक्स्ट है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। अभी एडवांटेजेस, जैसे हर एक मेथड का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा ही। ओके, तो फर्स्ट एडवांटेज है, इट इज़ अ मोस्ट रैपिड मेथड ऑफ सर्वे। अभी मोस्ट रैपिड मेथड क्यों बोला गया है इसको, बिकॉज अभी आप लोग ने देखा होगा नॉर्मली कौन सा ऑटो लेवल है, थर्डोलाइट, अगेन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग थर्डोलाइट देखेंगे। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करना पड़ता है, तो वो मतलब लेवलिंग तो करना ही है हर एक मेथड में, बट यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रूमेंट को भी सेटअप करना है। तो यहाँ पे जो हम लोग सिंपल एलईडी यूज़ करने वाले हैं तो उसके लिए बहुत ही कम टाइम लगता है, उसके लिए भी है। और एक तो स्किल्ड लेबर नहीं लगते, नॉर्मली हम लोग नॉर्मल लोग भी ये मेथड कर सकते हैं, इसीलिए ये रैपिड मेथड है। नेक्स्ट एडवांटेज है, देयर इज़ नो नीड फॉर अ फील्ड बुक एज अ प्लॉटिंग इज डन अलॉन्ग विद द फील्ड बुक, सो द प्रॉब्लम ऑफ मिस्टेक इन बुकिंग द फील्ड नोट्स डज नॉट अराइजेस। अभी आपको याद रहेगा कि हम लोग ने कंपास सर्वे में ग्राउंड पे जाते थे, देन रीडिंग्स नोट डाउन करके आते थे, देन कंटूरिंग में भी सेम किया है, रीडिंग नोट डाउन किया, देन हम लोग आए एंड देन कंटूरिंग किया। बट यहाँ पे क्या है, हम लोग डायरेक्टली ही ग्राउंड पे ही मैपिंग करते हैं, तो जो भी रीडिंग नोट डाउन करना है वो ऑलरेडी शीट पे होता है। नॉर्मली कभी क्या होता है कि जो हम लोग ने रीडिंग लिखा है तो वो फील्ड बुक या नोट्स कहाँ पे भी मिस होने के चांसेस होते हैं, या किसी ने रीडिंग बताई तो वो रीडिंग लिखने वाला भी गलत लिखता है। तो ऐसे सब जो प्रॉब्लम्स है वो प्लेन टेबल में नहीं होते, बिकॉज साइमल्टेनियसली प्लॉटिंग एंड मैपिंग होता है इसके लिए। थर्ड एडवांटेज है, प्लॉटिंग वर्क कैन बी कंपेयर विद द एक्चुअल ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट दे आर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड। अभी यहाँ पे क्या है कि ग्राउंड मतलब जो हम लोग मैप पे प्लॉट करने वाले हैं तो वो हम लोग के सामने ही है, बिकॉज जो ग्राउंड पे ही हम लोग क्या करने वाले हैं, वहाँ पे ही मैप करने वाले, तो हम लोग वहाँ पे ही चेक कर सकते हैं कि हम लोग ने बराबर से सब प्लॉटिंग किया है कि नहीं किया है। नेक्स्ट वन इज, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलुकिंग एनी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे क्या है कि सामने होने के कारण हम लोग कौन सा भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट मिस करने के चांसेस नहीं होते। नॉर्मली मतलब जब भी प्लॉटिंग करते हैं तभी मिस होने के चांसेस नहीं होते। कंपास सर्वे थर्डोलाइट में रीडिंग लेके आने के बाद अगर हम लोग मैपिंग करते हैं तो ऐसे केसेस में हम लोग के चांसेस होते हैं कि हम एक आधा पॉइंट मिस कर देते, बट प्लेन टेबल में वो एक एडवांटेज है। सिमिलरली there is no possibility, this is next point, there is no possibility of overlooking any measurement as plotting is done in the field। मीन्स हम लोग एक भी मेजरमेंट भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मिस नहीं कर पाते, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग साथ में ही प्लॉटिंग एंड मैपिंग कर रहे हैं। द नेक्स्ट एडवांटेज इज इरेग्युलर ऑब्जेक्ट मे बी रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली। कोई भी इरेग्युलर ऑब्जेक्ट हो तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द मैप। नाउ द नेक्स्ट एडवांटेज इज, इट इज़ सुटेबल इन
मैग्नेटिक एरियाज। अभी ऐसा क्यों बोला गया है कि मैग्नेटिक एरियाज में ये सुटेबल है? बिकॉज जैसे कंपास सर्वे में जो मैग्नेटिक नीडल थे, तो वो नीडल क्या होते हैं, मैग्नेटिक होने के कारण आजू बाजू जैसे आयंस है, मेटल्स है, तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो लोकल अट्रैक्शन आता है। लोकल अट्रैक्शन आप लोग ने पहले बेसिक सर्वे में पढ़ा है। तो लोकल अट्रैक्शन आने के कारण क्या होता है, जो भी रीडिंग्स है उसमें एरर्स आने के चांसेस होता है। तो ये प्लेन टेबल सर्वे ऐसे सिचुएशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और बहुत लार्ज स्केल पे तो नहीं यूज़ कर सकते, बट स्मॉल एरियाज़ में जहाँ पे स्मॉल मैपिंग हो सकता है और जहाँ पे मैग्नेटिक आजू बाजू कोई मैग्नेटिक एरियाज़ नहीं है, तो ऐसे ही सिचुएशन में हम लोग प्लेन टेबल सर्वे कर सकते हैं। ये किसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। द मैप कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली एंड डज नॉट रिक्वायर एनी ग्रेट स्किल। इजीली हम लोग मैप कर सकते हैं। सो यहाँ पे कोई ग्रेट स्किल वर्क का लगता नहीं है। देन नेक्स्ट वन इज अ एरर इन मेजरमेंट एंड प्लॉटिंग कैन बी डिटेक्टेड बाय चेक लाइन्स। ओके, अगर यहाँ पे कौन सा भी एरर है, प्लॉटिंग करते हुए कौन सा एरर हो गया, तो वो एरर हम लोग क्या करते हैं, चेक लाइन के मदद से हम लोग वो डिटेक्ट कर सकते हैं। देन इनएक्सेसिबल पॉइंट कैन बी इजीली लोकेटेड बाय इंटरसेक्शन मेथड। अभी इंटरसेक्शन एक मेथड है जो हम लोग उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखने वाले। इंटरसेक्शन मेथड नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में यूज़ करते हैं कि सपोज कि हम लोग का एक रिवर है और हम लोग एक पॉइंट जहाँ पे वो पॉइंट है तो इजीली एक्सेसिबल नहीं होता, मतलब हम लोग वॉक करके जा नहीं सकते। तो वो आप लोग जब ये मेथड पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कि ऐसे जो पॉइंट्स है, तो हम लोग नॉर्मली क्या होता है, जैसे कंपास सर्वे में आप लोग ने देखा होगा कि सभी पॉइंट्स हम लोग को नज़दीक चाहिए, बट ये एक ऐसे जो दूर का पॉइंट है वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल बाय इंटरसेक्शन मेथड से हम लोग प्लॉट कर पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे। भी डिसएडवांटेजेस क्या है प्लेन सर्वे के? अभी ये प्लेन टेबल सर्वे क्या है कि एक्यूरेट वर्क नहीं होता, मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है इसमें। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस इज प्लेन टेबल सर्वेइंग इज नॉट सुटेबल इन वेट क्लाइमेट, इन रेनी सीजन, ऑन फॉगी मॉर्निंग एंड इन विंडी वेदर। जैसे कि हम आप लोग मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि हम लोग मैपिंग एंड रीडिंग साथ में ही करते हैं। तो जो भी हम लोग अगर रेनी सीजन हुआ तो ऑलरेडी जो शीट है वो क्या हो सकती है, श्रिंक होने के चांसेस होते हैं, और जो भी हम लोग ने प्लॉट किया है वो पूरा इरेज या वैनिश होने के चांसेस होते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग ये तो रेनी सीजन में नहीं कर सकते, विंडी वेदर में भी नहीं कर सकते, बिकॉज शीट को स्टेबल होना ज़रूरी है। विंड के फोर्स से वो क्या हो सकता है, पूरा श्रिंक हो सकता है। सिमिलरली बहुत ही हैवी सनलाइट हुआ तो हम लोग का ड्राइंग शीट ऑलरेडी वाइट होता है, तो वो एक रिफ्लेक्ट होता है, तो आइस पे इफेक्ट होने, आइस पे बहुत मतलब तकलीफ देती है, पूरा इफेक्ट नहीं बोल सकते। तो ऐसे सिचुएशंस में भी हम लोग क्या करते हैं, प्लेन टेबल का यूज़ नहीं कर पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट थर्ड डिसएडवांटेज इज नंबर ऑफ एक्सेसरीज रिक्वायर फॉर such a survey is large and they are likely to be lost the instrument। अभी बहुत सारे छोटे छोटे एक्सेसरीज है, लाइक यू फॉर्क है, प्लम बॉब है, ट्रफ कंपास, स्पिरिट लेवल है। तो ये क्या होते हैं कि हम फील्ड पे ही करते हैं सब, इसके लिए क्या होता है कि मिस होने के चांसेस होते हैं। केयर किया तो ऑब्वियसली नहीं मिस होगा, बट कहाँ पे इग्नोरेंस किया किसी ने तो वो लॉस्ट होने के चांसेस होते हैं। And the last one is the map cannot be replotted to the different scale as there is no field book। okay, ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिस्टेंस आया है तो हम लोग वहाँ पे ही कन्वर्ट करके हम लोग ये मैप प्लॉट करते हैं। तो हम लोग डिफरेंट, जैसे अगर किसी अलग डिफरेंट स्केल में बनाना हो तो हम लोग बस इतना नहीं कर पाते,
जो भी लिया है मेजरमेंट शीट पे, वही मेजरमेंट से हम लोग को वो क्या करना है, प्लॉट करना है। तो ये ओवरऑल डिसएडवांटेजेस है ये मेथड के। भी डिसएडवांटेज आते कहाँ से, बिकॉज हम लोग किसी भी मेथड को क्या करते हैं, एक टॉप मेथड से कंपेयर करते हैं। ऑब्वियसली ये अच्छा मेथड है, बट अगर हम किसी भी टॉप मेथड से कंपेयर करें तो उसका एक्यूरेसी जो है वो बहुत लेस है इसके लिए। तो ये टोटल ओवरऑल डिसएडवांटेजेस है। ओके, अभी नेक्स्ट अगर किसी को डाउट रहा तो मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, या हम लोग डाउट सेशन रखने ही वाले हैं। आप लोग एक दिन मुझे बताओ कभी आप लोग फ्री हो गए, तो वही दिन पे हम लोग ये डाउट सेशन भी रख देंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।